السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم شروع کریں گے حروف جارہ۔ امید ہے آپ لوگوں نے حروف جارہ یاد کر لیے ہوں گے، ورنہ یہ دیکھ لیجئے۔ یہ حروف جارہ باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منذ مثقلہ ربا حاشا من عدافی ان علا حتی الا، ٹھیک ہے جی۔ ان میں سے جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں واضح رہیں کہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم حل کر رہے ہیں اسم کو، ٹھیک ہے، علامات اسم کو، اور ان میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، تو وہ تو یہی ہے کہ اسم ہے، دوسری چیز کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ہم نے وہ دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ پھر یہ کیا ہوگا کہ یہ علامت بھی ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ تو دیکھیے حروف جارہ، ان میں سے ہم کچھ الفاظ کا اجرا کریں گے، ٹھیک ہے جی، کچھ الفاظ کا اجرا کریں گے تاکہ باقی جن کا استعمال بکثرت ہے، جن میں سے دیکھیے حروف جارہ میں سے ایک با ہے، تو ہم نے علامت پڑھی تھی کہ جس لفظ کے شروع میں با ہو تو وہ لفظ بھی اسم ہوگا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ جیسے باللہ، جی اس میں با حرف جر اس کے شروع میں ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک اور چیز واضح ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہوگا حرف جر اور ایک ہوگا اس کے بعد والا اسم، تو دو الگ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، دو کیا ہیں؟ الگ الفاظ ہیں، ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے۔ تو اب یہ نہیں کرنا کہ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ باللہ ہی اسم ہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ لفظ اللہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں با ہے۔ اچھا، اور ایک لفظ میں زیادہ علامتیں بھی پائی جا سکتی ہیں، جیسے لفظ اللہ ہے، اس کے شروع میں الف لام بھی ہم کہہ سکتے ہیں، علم بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ جتنی زیادہ ہو سکتی ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح دوسرا لفظ ہے تاللہ۔ اب اس میں تا حرف جر ہے، حروف جارہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور لفظ اللہ کے شروع میں ہے۔ اب ہم کہیں گے لفظ اللہ اسم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں تا حرف جر ہے۔ اسی طرح وعلی اللہ قرآن میں آتا ہے تو وہاں سے لیا گیا علی اللہ۔ یہاں پہ دیکھیے لفظ اللہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں علی ہے۔ اسی طرح اگلے لفظ کو دیکھیے فی اللہ۔ اب فی اللہ میں لفظ اللہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں فی حرف جر اس کے شروع میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگلا حرف ہے من۔ اچھا، اور من کو من اللہ، تو من کو جو نون کو جو حرکت دی گئی وہ عارضی ہے آگے سے ملانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ اللہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں من حرف جار ہے، جی۔ اب آگے دیکھیے لفظ عن ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم قرآن پاک کے یہ تو چونکہ ویسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں قرآن پاک سے بھی انشاءاللہ ان کو حل کریں گے۔ تو حروف جارہ میں سے ایک عن ہے، تو جیسے صلاتن، اب ہم کہیں گے یہ صلاتن اسم ہے، پورا نہیں، عن صلات اسم نہیں، بلکہ صلاتن اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں، جی، کیونکہ اس کے شروع میں کیا ہے؟ ان اس کے شروع میں۔ اسی طرح الا مکہ، یہاں پہ لفظ مکہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں کیا ہے جی؟ اس کے شروع میں الہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض قرآن میں ہے، تو یہاں پر بھی لفظ اللہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں لام حرف جر ہے۔ اسی طرح للناس، اس میں بھی الناس اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں لام حرف جر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عن الناس، اس کے شروع میں الناس اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں ان حرف جار ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہم دیکھیے قرآن پاک کو، اب دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک سے اب ہم حل کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
अब देखिए कुरान पाक से, जी आप में से कोई बतलाएंगी कि ये लफ्ज क्या है? और जी इसमें सूरह नास में कौन सा लफ्ज इसम है और क्यों है? देखिए पहला लफ्ज देखिए, बिरब्बी। रब्बी इसम है क्योंकि इसके शुरू में बा हरफे जार है। ठीक है, एक हो गया। दूसरा, आगे चलिए, मिन शर्री। शर्री इसम है क्योंकि इसके शुरू में मिन हरफे जार है। इसी तरह आगे चलिए, फी सुदूरिन नास। सुदूरी इसम है क्योंकि इसके शुरू में फी हरफे जर है। इसी तरह आगे चलिए, मिनल जिन्नती। अल जिन्नती में और अलामतें भी थी, अलिफ लाम भी था, गोलता भी थी, लेकिन यहाँ पर तीसरी अलामत जो आज हमने पढ़ी है वो है उसके शुरू में मिन हरफे जार है। बात समझ में आ गई जी? अब अगली सूरत को देख लीजिए जी, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। यहाँ पर भी रब्बी इसम है क्योंकि इसके शुरू में बा हरफे जर है। ठीक है, इसी तरह शर्री इसम है क्योंकि इसके शुरू में मिन हरफे जार है। ठीक है जी, आगे आगे देखिए जी, वमिन शर्री, यहाँ पर भी शर्री इसम है। वमिन शर्री नफ्फासात, यहाँ पर भी शर्री इसम है। फिल उक़द, अल उक़द। देखिए अब यहाँ पे दो अलामतें हैं, एक शुरू में अलिफ लाम है, दूसरा इस पर फी हरफे जर दाखिल है। जी बात समझ में आ रही है ना जी आप लोगों को? अब अगली सूरत देख लीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है जी, अगली सूरत देखिए। अब यहाँ पे देखिए अगली सूरत में फी जी दी, यहाँ पर जीदी इसम है क्योंकि इसके शुरू में फी हरफे जार है। इसी तरह मिन मसदिन, मसदिन इसम है क्योंकि इसके शुरू में मिन हरफे जर है और तनवीन है। ये बात समझ में आ गई जी? अब आगे चलते हैं, देखिए अगली सूरत देखिए। तो यहाँ पे देखिए, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनी। अब दीनी ये इसम है क्योंकि इसके शुरू में फी हरफे जर है। बात समझ में आ गई जी? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, बिहम्दी। यहाँ पर लफ्ज हमदी इसम है क्योंकि इसके शुरू में बा हरफे जार है। ठीक है जी, इसी तरह जी अब यहाँ तक हमने 5 सूरतें कर ली। अब देखिए अब अगला जो है हमारा वो है, यहाँ पे हमने किया वो मुश्तरका इजरा। जी अलामत इसम का यानी जितनी भी हमने कर ली हैं तो उनका अब आप लोगों ने क्या करना है यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने शुरू में अर्ज किया था कि कुछ अलामतें ऐसी जो इनको अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि वो मुरक्कबात में जाके करेंगे, आपको कुछ कुछ अलामतें खुद समझ में आ जाएंगी, कुछ हम मुरक्कबात में जाके करेंगे। ठीक है, जैसे अस्सिरातु। अब यहाँ पे अब ये लफ्ज इसम है क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम है। इसी तरह हमने मुसदा, मुसदतुन। अब यहाँ पे दो अलामतें हैं, एक अलामत क्या है कि गोलता इसके आखिर में इस वजह से इसम है, दूसरी अलामत क्या है कि तनवीन है। ठीक है, इसी तरह अला सतही, असतही इसम है क्योंकि इसके शुरू में अला है और दूसरी अलामत इसके शुरू में अलिफ लाम है। ठीक है, इसी तरह मिनल मुअस्सिराती। अब यहाँ पर भी दो अलामतें हैं, अल मुअस्सिरात इसम है क्योंकि इसके शुरू में लाम अलिफ लाम है। अच्छा, और दूसरी अलामत क्या है, इसके शुरू में मिन है। अर रहमान इसम है क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम है। इसी तरह ज़ारिबतुन, जी ये भी इसम है क्योंकि इसके शुरू में इसके आखिर में गोलता भी है और तनवीन भी है। ठीक है, इसी तरह मिहादन। ठीक है, अब मिहादन इसम है क्योंकि इसके शुरू में, जी इसके आखिर में तनवीन है, इसके आखिर में क्या है जी, तनवीन है। इसी तरह लिहुब्बी, जी अब यहाँ पे लिहुब्बी क्या है जी, इसम है क्योंकि जी क्योंकि इसके शुरू में क्या है, लाम हरफे जर इसके शुरू में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें अलामात इसम जो है जो हमने अभी तक करनी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना यानी यहाँ तक हो गई हैं। तो अब आप लोगों ने इसमें वो देखना है कि जी अलामतों को जितना हो सकता है आप अपने ध्यान में बिठाएं। ठीक है, अब ये कुरान पाक से मजीद हम देख लेते हैं, हमारे पास 2-3 मिनट हैं तो इसको मजीद हम देख लेते हैं। जैसे अगली सूरत में देखिए, लकुम, जी यहाँ पर
लाम जो है ना कुम ज़मीर है, ठीक है। अब इसमें इसम है, एक तो ज़मीर में देख याद रखिएगा कि ज़मीर वैसे भी इसम ही होती है, ठीक है, इसलिए मैंने पिछली ज़मीर को छोड़ा था जिनके शुरू में लाम था। लेकिन एक आप करवा देता हूँ, देखिए अब यहाँ पे कुम इसम है, एक तो इसमें ज़मीर है, ठीक है, ज़मीर इसम ही होती है। दूसरा इसके शुरू में क्या है, लाम हरफ जर भी है। जी, अगली सूरत को देखिए, लिरब्बी, लिरब्बी अल कौसर, ठीक है, अल कौसर इसम है क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम है। इसी तरह लिरब्बी, रब्बी इसम है क्योंकि इसके शुरू में लाम हरफ जर है। इसी तरह अल अबतर ये इसम है क्योंकि इसके शुरू में जो है ना अलिफ लाम, इसके शुरू में अलिफ लाम है। बात समझ में आगे जी। इस तरह देखिए अब हम आगे चलते हैं। अल्लज़ी इसम है क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम है। इस तरह बिद्दीन में अद्दीन इसम है क्योंकि इसके शुरू में जो है ना अलिफ लाम भी है और बा हरफ जर भी है। अल्लज़ी ये भी कर लिया। अल यतीम ये भी इसम है क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम है। इसी तरह अला तुआमी, तुआमी इसम है क्योंकि इसके शुरू में आला है। अल मिस्कीन इसम है क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम है। इसी तरह वैलुन इसम है क्योंकि इसके आखिर में तनवीन है। लिल मुसल्लिम दो अलामतें हैं, एक अलामत अलिफ लाम और दूसरा जो है ना लाम जारा, ठीक है। अन सलाती, सलाती अब वो कर चुके हैं हम जी। अल्लज़ीना वो भी कर लिया। या अल माऊन ये भी इसम है क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमारा यानी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 दिनों में अलामात इसम में से जो जिनके इस्तेमाल कसीर है एक, दूसरा जिनके जिनको यानी कि हम जो मतलब ये ज़हन में रखिएगा कि जिनको हम आसानी से अभी इब्तिदा में समझ सकते हैं वो अलामतें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली हैं, ठीक है। अच्छा तो अब आज इसको यहीं तक रखिएगा ताकि हमें अलामत इसम मुकम्मल हो जाए और इंशाल्लाह पीर से फिर हम इंशाल्लाह आगे इसको चलेंगे, ठीक है। अब अगर किसी ने कोई बात पूछनी हो तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है आज की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जी चलें फिर, अगर किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आप यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह फिर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा आप इनफिरादन अपनी राय ज़रूर दे सकती हैं, किसी भी हवाले से आप लोगों ने राय देनी हो, ठीक है। हाँ कोशिश करें कि इनफिरादन राय हो ताकि उस राय को देख कर फिर उस पर अमल किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।